Okay. Now, see, if you first comment, can you send the solution on WhatsApp or so on? Are you facing any difficulty in sending the solution? तुम्हें होमवर्क पहले पोस्ट नहीं करना, जब मैं बोलूंगा अभी इस क्वेश्चन के बाद पोस्ट करना है, जब मैं बता दूं इसको. रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम. तो रोहन की जो मदर है वो 26 ओल्डर देन हिम. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर 3 year from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. ठीक है, तो जिसकी एज हमें नहीं पता है, जिसकी एज इसको फाइंड करनी है, तो उसकी एज, तो रोहन की एज हमने x ले ली. रोहन्स एज इज x. ठीक है. मदर, तो रोहन को मैं r से रिप्रेजेंट करता हूं, तो रोहन की एज x है. यहां पर हमें सॉल्व नहीं करना, सिर्फ इक्वेशन लिखनी है इसमें क्वेश्चन में. एंड इफ यू वांट टू सॉल्व देन नो प्रॉब्लम, आगे कोई ना कोई एक्सरसाइज होगी जहां पर हम सॉल्व करेंगे. तो रोहन की एज x है. ठीक है. मदर्स इज 26 ओल्डर देन हिम. मदर की जो एज होगी दैट विल बी x plus 26. यू कैन सेंड द सोल्यूशन ऑन व्हाट्सएप, क्योंकि मैंने पहले होमवर्क दे रखा था, तुम्हें पता है शायद, है ना. The product of their ages in year 3 year from now. ठीक है. 3 year from now will be 360. अच्छा. What will be the we will like to find the Rohan's present age. तो now का मतलब क्या होगा? जैसे अगर मैं किसी की एज बताता हूं, है ना, तो जैसे मैं तुम्हारी एज पूछूंगा तो तुम्हें अभी अपनी एज बतानी पड़ेगी. ठीक है. 18 ईयर, फ्यू डेज एंड फ्यू आवर्स. हम इतना डिटेल में बताते नहीं है, मगर एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो हमारी जो एज है वो बढ़ रही है ना. हमारी एज ईच सेकेंड में आवर एज इज इंक्रीजिंग. ठीक है. हमारी एज जो है वो बढ़ रही है. तो इस समय रोहन की एज x है, ऑब्वियसली इस समय. तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर 3 year from now. तो 3 year from now अगर बात करेंगे, if you talk after 3 year from now, after 3 year, if you will send the solution, I will show in live class. है ना. Comment if you can send the solution in WhatsApp or not. Are you able to send solution in WhatsApp? Comment fast. Can you send solutions? Are you facing any difficulty in sending the solution at your WhatsApp group? Just comment fast. Are you facing any difficulty in sending the solution in your WhatsApp group? I will able to send. Yeah, that means if one student is able to send, then any student can send. I think that group is open. I think commenting is open. Comments are open for all the students. So please send solution solution at WhatsApp. Okay. So one is sufficient. If one is able to send, all are no problem. So please send. ये homework था. तो अगर तुम solution send नहीं करोगे तो I will consider you have not completed your homework. तो homework पहले से. ठीक है. After 3 year क्या हो जाएगा? इसकी एज हो जाएगी x plus 3, है ना, एंड उसकी मदर की एज हो जाएगी x plus 29. 3 ऐड कर दो. तो इसका जो प्रोडक्ट है, और मैं चेक कर लूं कि मेरा व्हाट्सएप वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है. माई व्हाट्सएप आई थिंक वर्किंग. तो उसकी जो एज है, प्रोडक्ट ऑफ एज है, दैट इज 360 आफ्टर 3 year. 360. We would like to find Rohan's present age. We would like to find. अच्छा, इसमें हमें solve नहीं करना है. We have to just form the quadratic equation. No need to solve. Little bit easy. तो बाकी if you want you can solve, no problem. I have no problem. Just you can solve it. But I am not going to solve it. या किसी और एक्सरसाइज में आगे होगा शायद solve करना पड़ेगा. Okay.
So this is question number 3, and then let's solve question number 4. Please send the solution. अगर किसी ने attempt किया हो solution, please send at WhatsApp. Please send. है ना? A train travel a distance 480 kilometer at uniform speed. If the speed had been 8 kilometer less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. ठीक है. अब ऐसी you will face a lot of situation in which you have to make a quadratic equation. So I have told you the quadratic equation is the most important part of all the polynomials. है ना? Quadratic equation is most important part of all the polynomials. So you just word problem are the most important problem. Even 11th 12th में भी word problem quadratic equation की बहुत है. Similar type की word problem 11th 12th में आएंगे. ठीक है. Students are coming too late, so please try to come on time, and otherwise I am recording. No problem, but try to come on time. A train travel a distance 480 kilometer at just I will make a train, a little bit train, because train बहुत ज़्यादा distance travel करती है, तो उसका size उसके distance के comparison में बहुत कम होता है. Now I have received one solution. I think someone has sent message, but Yash, very good. Okay, Yash, अच्छा ऐसे तुम solution भेजो तो तुम्हें कुछ guide करूँगा मैं, है ना? ये तो पुराने question का है, ये कुछ guide करूँगा. इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, हाँ. ये पता नहीं तुम्हारी कुछ habit होती है, maths को भी तुम history की तरह लिखते हो. No need to write. अगर तुम्हें पहले किसी ने explain किया हो कि पूरा लिखो, तो वो मेरे साथ नहीं चलेगा, ठीक है? मेरे को फालतू का ये ड्रामा नहीं चाहिए, मतलब लिखो, टाइम वेस्ट करो. पता नहीं मोस्ट ऑफ द क्योंकि मैंने अभी पहले मैं तो 12th को पढ़ाता था, अभी जूनियर क्लासेस में अभी शुरू किया पढ़ाना, तो आई हैव सीन लॉट ऑफ ड्रामा राइटिंग द क्वेश्चंस, एंड ये दिस इज फुल ऑफ टाइम वेस्ट. नो नीड टू राइट द क्वेश्चन. इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है. अब इतना लंबा मैं चेक करूंगा क्या? ये पूरा पढ़, अब तुम्हें तो कोई भी टीचर इसको चेक थोड़ी ना करेगा. इसको रीड करने का टाइम किसके पास है? तो डोंट राइट टू मच. इतना लिखने की जरूरत नहीं है. जस्ट राइट जैसे मैंने लिखा, बस आफ्टर 3 years दिस मच इज सफिशिएंट. इतने 50 वर्ड देने की जरूरत नहीं है. दिस इज नॉट अ हिस्ट्री. तुम लोग इसको हिस्ट्री की तरह लेते हो, हिस्ट्री सिविक्स की तरह. लेस नंबर ऑफ वर्ड रिड्यूस करने की कोशिश करो बहुत. जैसे मैंने क्या लिखा, इतना, एंड आफ्टर 3 years, बस इनफ. दिस मच इज इनफ. कॉपी में बस तुम्हें इतना ही लिखना है, नॉट मोर देन दिस. और इतना लिखने में कितना टाइम लगता है? And जैसे next question में try to visualize the situation. Instead of writing the literature, try to visualize the situation. जैसे मैं बता रहा हूँ, ड्राइंग करने की कोशिश करो. A train travel, इससे तुम्हें भी समझ में आएगा और वो सामने वाले को भी समझ में आएगा क्या हो रहा है. लिखा तो इसने भी खुद है बहुत सारा, लिटरेचर तो इसी ने दिया है. तुम उस लिटरेचर को कॉपी करोगे तो उससे क्या फायदा होगा? A train travel. So stop this. Just write the relevant information, not unnecessary things, and try to make the diagram if possible. A train travel a distance 480 kilometer with uniform speed. तो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन ट्रैवल करती है, तो ट्रेन ट्रैवल करती है यूनिफॉर्म स्पीड से. ये डायग्राम पता लग गया, दिख गया मुझे, लिखने की जरूरत ही नहीं. अब मैं इसको लिखूंगा ट्रेन ट्रैवल विथ यूनिफॉर्म स्पीड, नो नीड टू राइट, उसने खुद ही लिखा हुआ है ना. So try to visualize this. ऐसे हम लोग को, and this distance is 480 kilometer. See मैं कैसे कर रहा हूँ, तुम्हें सिमिलर मेरी तरह करना है. Follow me. ठीक है, एकदम ऐसे मैंने डायग्राम बनाया, उसको समझना. If the speed had been 8 kilometer less, अभी स्पीड कितनी है तो स्पीड दिखा दो, rather than writing just स्पीड कितनी है इसकी, 480 किलोमीटर, डिस्टेंस इतना. If the speed x assume कर लो. वैसे स्पीड को v से भी रिप्रेजेंट करते हैं. If you assume x, no problem. तो x is speed. So बस यहाँ पे लिख दिया. x तुमने क्या assume किया है? Symbolic form में बस speed. No need to write the x is speed of the train. इतने वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, यहाँ से देखो तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि x स्पीड होगी, बस symbolic form. Write in symbolic form. है ना, तुम्हें भी समझ में आ रहा हो. So if the speed had been
तो पहले वाले सर ने अगर बोला हो पूरा लिखने को तब भी मैं कह रहा हूँ कि राइट डाउन सिंबॉलिक फॉर्म, है ना, तो उसी को जो मैं बोल रहा हूँ फॉलो करो एंड प्लीज सेंड द सोल्यूशन, ट्राई इट एंड सेंड। मेरे साथ भी ट्राई कर सकते हो और पहले ट्राई किया तो बहुत अच्छी बात है। जैसे यश ने भेजा तो मैंने तुम्हें गाइड किया, अगर तुम ऐसे नहीं दिखाओगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा? इज इट क्लियर? हाँ, क्वाड्रेटिक सॉल्व किया, बहुत अच्छा किया, बट नो नीड टू राइट दैट मच, जस्ट राइट, और बहुत कम लिखो, जस्ट राइट लिटिल मच, मतलब जस्ट राइट इन सिंबॉलिक फॉर्म। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मतलब बहुत सारे बच्चे बहुत सारा स्कूल हैबिट की वजह से, उसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं, टीचर्स ऐसा बोलते हैं करने को, बट डोंट डू दिस। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर मैं इसकी अगला डायग्राम, सो आई एम नॉट राइटिंग, आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट making another figure. See this. Is it clear? Now speed is, now it is clearly visible what I am doing. So try to do this. Is it clear? I hope you understand. I hope you understand. No, nothing you have to write in. Basically, just listen to me. I am doing live checking. Is it clear? Just you can make the notebook for unsolved question. You can make the notebook and write in notebook like I am writing and take the image of all the question, crop that, क्योंकि फ्यूचर में अगर नोटबुक खो भी जाती है तो तुम्हारे पास उसकी इमेज सेव रहेंगी। तो बी लिटिल बिट मॉडर्न। इज इट क्लियर? तो राइट डाउन अ नोटबुक एंड टेक द इमेजेस, तो इमेजेस फॉर्म में सेव होगी। एंड इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन इन पेजेस एंड टेक द इमेजेस एंड सेव द इमेजेस, ठीक है? बिकॉज दिस इज डिजिटल वर्ल्ड, तो स्कूल का सिस्टम थोड़ा बहुत तो चेंज करें। नोटबुक का जमाना पता नहीं पुराना चला, वी आर इन द डिजिटल वर्ल्ड, तो इतनी सारी नोटबुक्स वेस्ट करने की जरूरत नहीं, इतने सारे पेड़ काटने की जरूरत नहीं कि हर सब्जेक्ट की अलग नोटबुक पे नोटबुक, अननेसेसरी। तो टेक फ्यू पेजेस एंड आई विल सजेस्ट इफ यू वांट टू सेव द environment, just you can take a whiteboard and write on whiteboard and take the images and save. There are a lot of options are there. Or I am writing, I don't use, do not use a single page. At least मेरे को कितने साल हो गए, 10 to 15 years, 15 years से I am teaching, I am reading a lot, I am writing a lot, but I have not used single page or paper. कुछ भी मैंने यूज नहीं किया, मैं इसी पे लिखता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट पे। किसी दिन इसमें तुमको ट्रेन कर दूंगा। इफ यू कैन यूज माइक्रोसॉफ्ट, एंड आई हैव अ डिजिटल पैड, इफ यू कैन सी दिस इन द कैमरा, दिस डिजिटल पैड, एंड दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू राइटिंग। मैं भी करता हूँ, बट बिना एनवायरमेंट को इफेक्ट किए। आई होप यू कैन सी दिस इन द कैमरा, आई एम शोइंग दिस, you can see this writing pad and digital pad. This is the most effective thing. Is it clear? So I'm not wasting any piece of paper. So little bit just my what you can say ki my cooperation for the environment. Yeah, my effort to save the environment. This is my best effort to save the environment. Try to this. अभी तुम अगर इस पे नहीं लिख सकते तो व्हाइट बोर्ड पे लिखो, उसकी इमेज लेके यू कैन सेव दिस, या पेजेस को मिनिमम पेजेस यूज करो, कुछ पेजेस ले लो, पेजेस में होमवर्क करो और फाइल के फॉर्म में सेव कर लो, है ना? बी लिटिल बिट डिजिटल। अननेसेसरी इतनी कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है ना? हर फाइल को नॉमिनेट कर दो, हर चैप्टर की अलग फाइल बना सकते हो, ये है। एंड एक दिन मैं इसकी क्लास दूंगा। इफ यू वांट टू यूज माइक्रोसॉफ्ट वन नोट एंड डिजिटल पैड, देन आई विल ट्रेन यू, है ना? डिजिटल पैड, तो उसमें भी तो लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर। नाउ वर्ल्ड इज बिकमिंग डिजिटल, और इसके बाद तो तुम्हें लॉकडाउन के बाद तो क्लियर ही हो गया होगा कि विदाउट डिजिटल काम नहीं चल सकता, है ना? विदाउट डिजिटल, तो यू हैव टू बी डिजिटल, तो पुराने तरीके छोड़ने होंगे, ठीक है? चलो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, एंड जस्ट मेथड भी ध्यान से देखो। मैं फालतू के वर्ड यूज नहीं कर रहा, आई एम नॉट यूजिंग अननेसेसरी वर्ड, आई एम शोइंग दिस, इट इज लिटिल बिट बेटर, so I am showing it in a next diagram. Is it clear? I'm showing it on, I think it is it visible? Okay, wait a second. Okay, so I am showing it in the diagram. So he is saying, और ऐसे आराम से जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करना है, तो मैं लग गया होगा, my battery is low. Okay, now
तो जैसे अब मैंने ये रटा हुआ क्वेश्चन, मैंने ये नहीं ये क्वेश्चन याद करके आ रहा हूँ, नहीं, नथिंग, मैं इसी को तुम्हारे सामने ऐसे ही तुम्हें करना है, ऐसे विजुलाइज करना है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर मैं स्पीड को 8 किलोमीटर लेस कर दूं, मतलब कितनी हो जाएगी, x माइनस 8। एंड राइटिंग के साथ ब्रेन चलना चाहिए, ये नहीं कि तुम ब्लाइंड राइटिंग कर रहे हो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डू ब्लाइंड राइटिंग, ये किसी दूसरे की बच्चे की कॉपी करते हैं, या ब्लाइंड राइटिंग, या राइटिंग के समय उनको ज्यादा मजा आती है कि राइटिंग इज वेरी इजी, कि बुक से इसमें कॉपी कर लिया, तो ब्रेन इज नॉट वर्किंग। ensure that your brain is working while you are writing. My brain is working, I am visualizing the situation. So visualize it, make the diagram. So if the speed had been 8 km less, then it would have to taken 3 hour more. अगर यहां पर t टाइम लगता है, अगर सपोज, क्योंकि टाइम पता नहीं है, तो ऑब्वियसली टाइम का सिंबल t होता है। अब अगर तुम्हें यहां पर थोड़ा लिखना है तो जस्ट राइट t फॉर टाइम, बस इनफ है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं, वी हैव अज्यूम्ड दैट t इज टाइम, नो नीड टू राइट दैट मच, सिंपल t इज टाइम, एनीवन कैन अंडरस्टैंड, t से और कुछ नहीं होता है। बाकी t इतना कॉमन है कि t टाइम के लिए यूज होता है। आगे तुम साइंस में पढ़ोगे तो t लिख दिया किसी ने, t लिख दिया, t फॉर टाइम ही होता है मैक्सिमम सिचुएशन में। now he is saying then it would have taken 3 hour more than। अब इसमें अगर t टाइम लगता है तो इसमें कितना लगेगा, ब्लू वाले में 3 hours more, यानी t plus 3. Is it clear? We need to find the speed of the train. Now we have to find the x. Now अभी इसे क्वाड्रेटिक बना के हमें छोड़ देना है, कि क्वाड्रेटिक बना के फिलहाल हमें सिर्फ इक्वेशन लिखनी है, सॉल्व तो हम कर ही लेंगे, या तुम्हें सॉल्व करना तो कर लोगे, और आई थिंक किसी आगे की एक्सरसाइज में इसको सॉल्यूशन करना है सारी इक्वेशन को, तो वहां पे हम लोग करेंगे। फिलहाल ऐसे लिख के छोड़ देंगे, फिर वापस यहीं पे आएंगे, सॉल्व करेंगे इसको। नाउ सो दिस इज, आई थिंक यू नो, velocity is distance upon time, या distance is equal to velocity into time. I hope you know this formula. Distance for 480 is equal to velocity into time. So this will be x into t. Is it clear? This is the formula. अब यहाँ पे ये लिखना है तो लिख लो, ये चलेगा, इतना लिखना है तो चलेगा, है, और इतना लिखना है तो just write down in capital letters. This is the main thing. Distance is equal to, we have used this formula, और इसको भी symbolic form है. This is distance is equal to velocity into time. तो इसको लिख दो, ये सही है, velocity into time। तो लिखना है तो मेन चीजें लिखो, into time ये होता है, into time, just write down this much is sufficient, and capital letter में लिखो कि बढ़िया से पता लगे, और वैसे small letter भी लिख सकते हो, वैसे it's your wish, I am writing in capital letter because it is very important। next है, now distance is same, I think distance is same, is it clear? To cover same distance, here distance is same, here distance is 480, so train have covered the same distance, had covered the same distance, so you can write it 480 same distance, same formula is velocity into time। Now velocity is 8 km per hour less, x minus 8, velocity is x minus 8 and time is 3 hour more। I hope you understand. T is equal to 3. Now how we will solve it? Just because we have studied that there in quadratic equation there is only one variable। I think someone have sent the solution, Hetvi, yeah, Tisha and Hetvi बहुत दिन से पढ़ रहे हैं मेरे साथ, तो ये लोग समझ गए, है ना, जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं वो मुझे समझते हैं। वेरी गुड, परफेक्ट तिशा, परफेक्ट, वेरी गुड, परफेक्ट तिशा, नहीं तिशा नहीं, सॉरी, यश ना, ये भी यश ने बहुत अच्छा किया है, ये सोल्यूशन भेजा है, पहले डिटेल लिखा था, ओके, अच्छा उसी इक्वेशन, अच्छा ये दिस मच इज ओके, मगर ट्राई टू मेक द डायग्राम, ठीक है, ये शायद आगे का पार्ट सॉल्व किया, दिस मच इज गुड, हाँ, नो नीड टू राइट स्पीड ऑफ ट्रेन इज एक्स ए फलाना निकालना, ये तिशा लिखने की जरूरत नहीं, मेक द डायग्राम, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस मेक द डायग्राम, इज इट क्लियर? So make the diagram instead of writing this. This is good क्योंकि ज़्यादा नहीं लिखा है, चलेगा, but if you make the diagram, the representation will be better। और visualize, किसी भी चीज़ में जब भी तुम कभी भी जब लिखते हो ना, साइंस और मैथ्स की बात करता हूँ, कि जब भी तुम किसी उसको विजुलाइज करके डायग्राम बनाते हो
तो उसका जो इफेक्ट है वो एटलीस्ट 10 टाइम ज्यादा हो जाता है। जैसे तुम भी लिख रहे हो और मैंने भी ऐसे लिखा, तो मेरा इफेक्ट 10 टाइम ज्यादा है, क्योंकि मेरा तुमने देखा होगा, देख के समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। यू जस्ट गिव अ लुक, क्वेश्चन को देखोगे एंड गिव अ लुक एंड यू विल अंडरस्टैंड। सो ट्राई टू मेक द डायग्राम। इज इट क्लियर? ये so जस्ट एंड हेतवी सेम थिंग, वर्ड्स बहुत कम यूज किए, इतने भी वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं, जस्ट ट्राई टू मेक द डायग्राम। सो नाउ गुड, वेरी गुड। तो ये मैं लाइव चेकिंग कर रहा हूँ, दिस इज एंटायरली न्यू थिंग एंड दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव थिंग, है ना। सारे बच्चे इसको इसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव थिंग। आई हैव चेक्ड, यू अंडरस्टैंड, यही तो होता है टीचर। मैंने कमेंट कर दिया पूरा, अब इसको तुम सबमिट करोगे, फिर मैं चेक करूंगा, फिर मैं कमेंट लिखूंगा, फिर तुम कमेंट पढ़ोगे। तो वो पुराने टाइम की तरह नहीं, लेटर की तरह हो जाता था। लेटर गया, किसी को मैंने पत्र भेजा, वो पहुंचा, उसने पढ़ा, उसने आंसर दिया, तो लॉट ऑफ टाइम। दिस इज लाइव चेकिंग, है ना, डायरेक्टली इट इज अ some echo is there, someone is asking something. No, there is some echo. Okay, I hope you understand, but this is good, but this is good. Okay, I am listening some echo sound. Okay, Yash, want to ask something? Yash, Yash, Yash. No, sir. Okay, I was then telling that voice problem is there. Okay, some students are facing voice problem due to their network issues. That's why I'm recording the things. I think I am recording now. Yes, that's why I'm recording. No problem. If you miss something, then you can see in the recorded video. I'm recording. So all the things are recording. Okay. So turn off your microphone, please. Turn off the microphone. Okay. So now, so this much. So Yash have solved this very good, and Tisha and they have solved Hetvi solved it very good. Okay. So यहाँ पे इसको सॉल्व इक्वेशन बना के छोड़ देना। परफेक्ट। मैं इसको फिर एक बार फाइनली कर लूँ, तुम लोग सॉल्व कर रहे हो, वेरी गुड। t की वैल्यू 480 माइनस एक्स पुट कर दोगे, है ना। तो यहाँ पे बस दिस इज x माइनस 8 and you will put t is equal to 480 by x, 480 by x plus 3. Is it clear? And this is also 480. Now अब क्वाड्रेटिक बन सकती है यहाँ से, तो बना दो लिटिल बिट, है ना। सो t की वैल्यू 480 by x है बस इसको, तो सॉल्व लिटिल बिट, मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं करूँगा। आई थिंक यू हैव, यहाँ से LCM ले लो x, तो इट विल बी 480 प्लस 3x, ठीक है, ये हो जाएगा। एंड दिस इज 480, so finally you will get 480x. I hope you are understanding. X ऊपर आ गया, then you will multiply, then this will be x minus 8 or 3x plus 480 plus 480. And to get the desired quadratic equation, you just multiply x by these two, by these, this and this, and then multiply minus 8 by other two. Then multiply minus 8 by this and this. So do this. First we'll do red term. So x and 3x will be 3x square, and x and 480 will be 480x. I hope you're understanding. Minus 8 and 3x will be minus 24x. Self check bhi kar sakte ho steps. I'm doing all the step, and this will be minus 8 into 480, and you can solve it and write down 480x. This x term will, I think, cancel out now. This will cancel out. 480x and 480x will be cancel out. Okay, this will cancel out. So equation is a little bit simplified. So though you can say the final equation is 3x square. This side 0. उसको reverse भी कर सकते हो, no problem. This is 3x square and minus 24x and minus 8 into 480.
I'm not multiplying this term. If you want to multiply it, multiply it. Is it clear? There's no need to multiply it. Now, we can multiply. if you want to multiply, then okay. Then if you don't want to multiply, क्योंकि वैसे भी जब सॉल्व करोगे तो प्राइम फैक्टर्स करने ही पड़ते हैं. मैं क्यों मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ? अननेसेसरी टाइम वेस्ट करना है. ठीक है, क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे तो वी हैव टू डू प्राइम फैक्टर ऑफ 8 and 488. तो उस तरह से 3, 8, 488. और इधर वी हैव टू यूज द जो कल फॉर्मूला दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वी हैव टू डू प्राइम फैक्टर. सो अननेसेसरी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई. आई एम नॉट मल्टीप्लाइंग इट. So I think I have completed this exercise, and only Hetvi and Tisha and Yash are completing their homework and trying the question. So I'm requesting all the students, maths. You will learn maths. Anyone can learn only from practice. If you do not practice, you can't learn mathematics. So practice at home. First practice solved example. See all the solved example. If you are facing any problem in solved example, then you can ask. जैसे example 1 में problem है, example 2 में, each and every example. क्योंकि मैं अगर टेस्ट लूंगा तो मैं कहीं से भी दे सकता हूँ, example से भी दे सकता हूँ. So solve all the example. एंड अनसॉल्व तो हम लोग पूरे क्लास में डिस्कस ही कर रहे हैं. इसको सॉल्व करो. उसके बाद ये सब मैंने भी बोल रखा है. डू ऑल द एग्जाम्पल 3 and 4 and 5 एवरीथिंग. डू एग्जाम्पल नंबर 5 द एग्जाम्पल. यू विल लर्न द मैथड. एग्जाम्पल नंबर 6 डू दिस एंड दैट आई हैव गिवन. आई थिंक मैंने इतना दे रखा था. आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट अभी तक. हाँ, इतना डिस्कस करने के बाद हम आगे पढ़ेंगे. तो कल आई होप कि कल तक तुम लोग इतना पूरा कर लोगे, है ना. जितना भी कर लोगे, थोड़ा बहुत, जैसे पूरा नहीं हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं. किसी का कॉपी नहीं करना है, किसी का ऐसे खुद से जितना भी हो पाए, है ना. खुद से जितना भी हो पाए, जितने भी क्वेश्चंस हो पाए वो सॉल्व करोगे, है ना. नेक्स्ट टाइम पे हम इसको डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन. इस पे हमने कुछ क्वेश्चन क्विज में भी लिए थे, तो जल्दी क्विज विज भी करेंगे. बट इसी में बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं. ठीक है. एंड व्हाट इज द टाइम? अभी तो 36 टाइम बाकी है, तो हम आगे भी कुछ डिस्कस कर सकते हैं. लेट्स कम टू एक्सरसाइज नंबर 4. नेक्स्ट एक्सरसाइज वी हैव कंप्लीटेड 4.1. नाउ वी विल डिस्कस 4.2. कुछ क्वेश्चन तो हो ही सकते हैं. 4.2. ठीक है. 4.2 प्लीज सॉल्व करके दो. साथ में भी सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करके दो. सेंड द सोल्यूशन. दिस इज वेरी इजी वन. फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड. You have to use only factorization method. कोई और मेथड नहीं चलेगा. तो do the factorization. This one is very easy, है ना. This one is very easy. मैंने कल भी शायद होमवर्क में दिया था. तो send me live. Send me if you have solved it. Send me fast. हम लोग सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. Send me fast. ठीक है. मैं सॉल्व करता हूँ, सोल्यूशन देता हूँ, तब तक सेंड कर दो. ठीक है. तो ऑनलाइन क्लासेस को सीरियसली लो. ज्यादा सीरियस है, ऑफलाइन से ज्यादा सीरियस लो. इफ यू विल पार्टिसिपेट, यू विल लर्न. ठीक है. अदरवाइज इफ यू नॉट पार्टिसिपेट, यू विल नेवर लर्न. सो हाँ, यहाँ पे मैं 1 by 1 आई एम सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चन. आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1. तो उसको सोल्यूशन, सेंड द सोल्यूशन. सेंड. सो दिस इज एक्स स्क्वायर. दिस इज वेरी इजी वन. मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ. बहुत प्रैक्टिस कर ली हम लोगों ने इस पर. I'm writing it x square minus 5x. I hope you understand this. This is very easy. Plus 2x. I think इसमें किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए. Send. और पहले से करके रखा. आज मैं 1-2 डिस्कस कर पाऊंगा. पहले से करके रखो इसको. तो x कॉमन ले लिया. मैथ में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा. तो है ना. x माइनस. I hope you understanding. इसके तो क्विज में भी हमने काफी कर लिए थे. ओके. आई हैव रिसीव्ड वन. लेट मी चेक. यश, वेरी गुड. यस, परफेक्ट, वेरी गुड. चलो, मुझे आगे करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. x विल बी, सो इट इज परफेक्ट. तो x विल बी 5 और -2. परफेक्ट. होमवर्क करोगे तभी तो सेंड करोगे. वेरी गुड. और देखो क्या
और थोड़ा सा टाइम लगेगा। आई थिंक यश, हेतवी और तिशा मेरे साथ पूरा लॉकडाउन में पढ़ा है इन लोगों ने, इसलिए दे आर, है ना, तो उनको हैबिट हो गई है। बाकी को थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट मेक दिस हैबिट, ठीक है। क्योंकि मैथ्स इज प्रैक्टिस ओनली। मैथ्स में कुछ ऐसा नहीं कि पढ़ लिया रट लिया तो आ गया। मैथ्स इज प्रैक्टिस ओनली, यू हैव टू डू प्रैक्टिस। x माइनस 5, सो दिस इज, क्लासेस तो वैसे सभी के लिए चली थी मगर जिन लोगों ने ज्वाइन किया था। सो ईदर दिस विल बी 0, सो इफ दिस इज 0 x विल बी -2, और दिस इज 0 x विल बी 5। सो दिस इज परफेक्ट। तो अभी तक यश, हेतवी का भी किसका सोल्यूशन आ चुका है? हाँ, हेतवी का भी आ गया, वेरी गुड। आई विल शो द लाइव, ओके, वेरी गुड, वेरी फाइन हेतवी एंड यश, परफेक्ट। तो लास्ट वाला है, मैं लाइव ऐसे दिखाऊंगा। यश, हेतवी एंड कर्णवी। कृना इज डिफरेंट ना, कर्णवी ने नेक्स्ट भेज दिया। अच्छा, अगला वाला पहले से भेज दिया, ओके, मतलब ये वाला नहीं किया होगा। चलो ये भी कर सकते, नॉट बैड। कर्णवी ने अगला वाला भेज दिया। ये कहाँ है? लेट्स सी, दिस इज कनिंग, वेरी कनिंग। आगे वाला भेज दिया, पीछे वाला चलो छोड़ो, सब लोग भेज रहे। हाँ, दैट्स ओके। एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यस कृना, परफेक्ट। आई थिंक कर्णवी ने कौन सा, ये वाला भेज दिया ना, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, यस परफेक्ट। आई थिंक 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। बाकी लोग भी देखो, भेजो। ये अभी पहले कर्णवी का पहले आ गया, अब बच्चे ज़्यादा स्मार्ट हो गए, वेरी गुड है ना, दिस इज कॉल्ड स्मार्टनेस। तो आगे वाला भेजते जाओ, आई हैव नो प्रॉब्लम। अगर तुम आगे वाले भेजते जाते हो तो मैं फटाफट दिखा दूंगा, तो इट इज़ वेरी गुड। और भेजते जाओ, अगर तुमने कर लिया है तो इसको देखने की ज़रूरत ही क्या है ना। तो ये तो उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो लोगों ने नहीं किया है, मैं सोल्यूशन उसके लिए कर रहा हूँ। -6, इसमें हम 2 और -6 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 और -6 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 2 इंटू -6 इज -12, 2 इंटू -6 इज -12। तो मल्टीप्लाई दोनों के, मतलब एक्स स्क्वायर का और कांस्टेंट वाला फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं, -12। अब -12 में +1 आना चाहिए, तो +1 कैसे आएगा? 4 और -3 करके, तो इट इज 2x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, -3x -6 इज इक्वल टू 0। तो यू कैन टेक सॉल्व, तो 2x ये आ जाएगा, ओके, x प्लस 2 एंड -3x x प्लस 2 is equal to 0. So you got x plus, नहीं यहाँ पे 3 होगा, this is 3 only. So this is 2x, what is going on? X plus 2 is common in both. Wait a second, एक और मिला, बस 2 मिनट में सॉल्व कर लूँ, I will show this. लाइव चेकिंग, ये मैं ही यूज करता हूँ ना, लाइव चेकिंग। दिस इज माई ओरिजिनल आइडिया, ये बहुत मजेदार होता है। बाकी तो चेकिंग बेकार है, तुमने पोस्ट किया, मैं घर पे देख रहा हूँ नहीं देख रहा हूँ, तो लाइव तुम्हें कमेंट चाहिए ना मेरे, कि मैं चेक करके कैसे कमेंट देता हूँ। टीचर के कमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं ना, तो मेरे कमेंट पे तुम इम्प्रूव करोगे। तो x प्लस 2 इंटू, 2 मिनट में देख रहा हूँ, बस इसको पूरा कर दूँ। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो आइदर दिस विल बी 0 or that will be 0. So either x will be -2 or 2x will be -3. Now I will check. कर्णवी ने पहले ही कर लिया था, तो परफेक्ट, वेरी गुड, परफेक्ट, परफेक्ट वर्क। देन कृना ने ये कौन सा अगला वाला भेज दिया, ये अब ज्यादा ही चालाक हो गए क्या? नहीं, ये कौन सा, अच्छा ये पुराना वाला, सॉरी, अच्छा उसके पहले आया था, आई फॉरगेट। वेरी गुड, ये तिशा का आ गया, तिशा, वेरी गुड, वेरी गुड, आई दिस इज करेक्ट। देन कृना, very good, then Hetvi, very good, very good, very good, very good, very good, बस हो गया चेक। शिवम और बच्चे पार्टिसिपेट करने लगे, वेरी गुड। शिवम लिटिल बिट गलती है क्या? अच्छा, कोई अगला वाला भेज दिया कि गलती क्या है? अच्छा, पुराना वाला आ रहा है शिवम का, ओके, दिस इज लास्ट वन, पहला वाला अब आ रहा है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, छोड़ दो पुराने वाले। कर्णवी, अच्छा कर्णवी ने आगे वाला एक और भेज दिया, वेरी गुड, चलो ये और स्मार्टनेस है, वेरी गुड।
ये तो मैं बाद में चेक करूंगा, वैसे भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पीरियड ना ओवर हो जाए। करीना ने भी आगे वाला भेज दिया। ओके, शायद मैं ये डिस्कस कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। 144 हो गया, डिस्कस नहीं कर सकते। चलो ठीक है, तुम्हारे पास तो ये कल फिर भेज दोगे, तुम्हें क्या, तो अपने पास सेव रखना ये सारे। ये जो अपना करते हो ना, ये सब इसका जो खुद करते हो ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं। इसका अपना फोल्डर बना लेना। ये जो इमेज लेते हो ना, इसका अपना एक फोल्डर बना के अपने लैपटॉप में, मोबाइल में कहीं भी सेव कर लेना, क्योंकि ये बहुत छोटा सा फोल्डर बनेगा। यश, वेरी गुड, दीज आर द परफेक्ट नोट, है ना। यश ने भी कर लिया, तो सभी बच्चों ने कर लिया। तो क्लास का टाइम ओवर होने वाला है, तो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, कल डिस्कस करूंगा। तो कल दोबारा से सेंड कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इस सबको एक फोल्डर बनाओ, अपना जो भी वर्क है वो सब सेव करके रखो, सारा सेव करके एक फोल्डर में, इमेज में एक फोल्डर बन जाता है। तो तुम्हें भी रिवाइज करने में कॉपीज की जरूरत नहीं, जब भी टाइम मिला अपना तुमने क्या किया है, क्या मिस्टेक है, यू कैन रिवाइज। दीज आर द बेस्ट नोट्स। जो तुम, नोट्स का मतलब ये होता है, नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि टीचर जो लिखा है वो लिखना है। नोट्स का मतलब होता है कि तुम अपनी चीजों को, तुम्हारे सेल्फ नोट, इसलिए हर बच्चे के नोट्स अलग होंगे, हर बच्चे का। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। सो टाइम इज अप, आई एम लीविंग। और आई होप कि इन बच्चों से इंस्पायर्ड होगे, जिनको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, उनसे इंस्पायर्ड होके बाकी सारे बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे। और मुझे कल एक दिन में प्रॉब्लम आने लगेगी दिखाने में कि इतने सारे बच्चों ने कर लिया। आई विल बी हैप्पी, मगर मैं सबके दिखाऊंगा, इसमें टाइम नहीं लगता है, सबके दिखाऊंगा डिस्कस करने के बाद, और सब पे कमेंट करूंगा, सारे बच्चों पे कमेंट करूंगा। ओके, तो टुमारो आई विल डिस्कस दिस एक्सरसाइज। आई थिंक कल तक यहाँ पे खत्म हो जाएगा। आई एम लीविंग, यस, बाय, टेक केयर, आई एम लीविंग, टेक केयर, टेक केयर।